Okay, we'll start now. Previous class, we have seen the equations of motion. We call it kinematic equation. They are for uniform acceleration. Uniform acceleration के लिए valid है, not for the other accelerations. Non-uniform acceleration के लिए valid नहीं है ना. That we have already seen, and some of the problems we had done. I think this problem was done. ठीक है. और homework में what this was the question given in homework. Yes, sir. Okay, we are going to discuss this and for the graph दिया था क्या ये graph? All right. So first we are going to discuss this question. Already 2 parts have been done in the class. Let's see again. Let us see them. देखो. ये part देखो. A player throws the ball upward with the initial velocity this much. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? Ball is going up. Ball is going up. What is the direction of acceleration? Downwards. Acceleration, as we have seen, it is independent of direction of motion of the body. Acceleration due to gravity is always downward. Freely moving body के लिए always downward. Because net force is downward. So this part has been already discussed many times. If still you have doubt, so you can just raise your doubt. So body ऊपर जा रही है, तो acceleration is downward. What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point? Highest point पे velocity and acceleration कितना है बोलो? Asma, you can tell. Highest point पे velocity and acceleration will be how much? So 9.8 meter per second square. Velocity. For velocity. Highest point पे रुकती है वो. It comes to rest. Velocity will be 0. Instantaneous velocity is 0. Or acceleration? Sir, acceleration 9.8 meter per second. Upward के downward? Sir, downward. Okay. Already we did this, ना? Because net gravity का force नीचे है. तो highest point पे velocity is 0. Velocity is 0, but acceleration is not 0. ठीक है, okay. Okay, you can mute it now. है ना? Now choose the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. Highest point पे x is equal to 0 लेना. Origin highest point पे लेना है. Okay, let us take that. यहाँ पे मैं diagram बना रहा हूँ. Body is going up and highest point is here. यहाँ पर x is equal to 0 and t is equal to 0 लेना है. ठीक है. Then vertically downward direction to be positive. So downward direction is positive. Means they have asked us to take positive. They have asked us to take the vertical downward direction positive. ठीक है, चलो. और upward direction negative. Upward direction negative. All right. और 0 यहाँ पर, ये origin हो गया तुम्हारा. Now give the sign of position. Position means उसका displacement, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. So suppose यहाँ पर है ball. Okay, let me make with the other color. Let's say बना दें. Ball is here going up. ठीक है, तो साइन देना है, ओनली साइन देना है, प्लस या माइनस. वेलोसिटी क्या होगी बोलो? गोइंग अप के लिए इधर में, गोइंग अप के लिए लेफ्ट साइड में, गोइंग डाउन के लिए, तो इट इज गोइंग अप, तो वेलोसिटी v नेगेटिव. तो v नेगेटिव को कैसे लेंगे? लेस देन 0. क्योंकि सी अपवर्ड डायरेक्शन दे आस्क अस टू टेक नेगेटिव, पार्टिकल इज गोइंग अप, तो v इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव को लेस देन 0 लिखा जाता है. ठीक है. और उसके बाद क्या बोला है? पोजीशन आल्सो.
गिव द साइन ऑफ पोजीशन, पहले पोजीशन का लिखते हैं फिर वेलोसिटी का। एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, Positive. करेक्ट। यहां से नीचे आना है, ये बोला है एक्स इज इक्वल टू 0 हियर, ऐसे बोला गया हमें, देखो कैन यू रीड इट, रीड द इंस्ट्रक्शन। एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 वेयर टू बी लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू टेक द पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नीचे जा रहे हैं, तो एक्स इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0 लिखते पॉजिटिव को। वेलोसिटी ऑलरेडी वी हैव सीन, वेलोसिटी ऊपर जा रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन Positive. पॉजिटिव बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन दे ask us to take the downward direction positive, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड गिव द साइन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। डाउनवर्ड के लिए भी, डाउनवर्ड में मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड में इट इज कमिंग डाउन नाउ। पोजीशन अभी भी नीचे है, पोजीशन स्टिल नीचे, Positive. पॉजिटिव, वेलोसिटी भी नीचे पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी नीचे पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो दीज आर द आंसर, लेट अस चेक द आंसर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। आंसर देखते कैसे दिया उन्होंने, यहाँ पे मैं आंसर को थोड़ा बड़ा करता हूँ। कौन सा था, बी पार्ट था, नहीं बी वाज डन, बी वाज डन, 0 एंड एक्सेलरेशन ये हो गया था। सी पार्ट, एक्स ग्रेटर देन 0 C. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों के लिए ग्रेटर देन 0। ओ सॉरी, ओके यहाँ पे वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे करेक्शन है, इट शुड बी वेलोसिटी। तो x ग्रेटर देन 0 फॉर बोथ, ठीक है। ओके जस्ट इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, लेट मी हाईलाइट द आंसर। है वेलोसिटी देखते हैं आंसर, लेस देन 0 फॉर अपवर्ड, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 फॉर डाउनवर्ड, ग्रेटर देन 0 फॉर डाउनवर्ड, ओके। देन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट, दोनों में ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो दिस इज गुड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज नॉट दैट कि हमेशा एक्सेलरेशन हमें नीचे ही लेना है, माइनस ही लेना है। दे हैव आस्क्ड यू टू टेक प्लस, देखो प्लस है, अपवर्ड डायरेक्शन माइनस आ रही है ना। तो आई हैव बीन टेलिंग यू कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव हो। क्वेश्चन नंबर डी आई थिंक सबका आ गया होगा। डी पार्ट देखते हैं। To what height does the ball rise and how long does the ball return to the player's end? Height निकालने के लिए कौन सा फार्मूला बोलो? Which formula do we need to find out the height? V square is equals to U square plus 2AS. हाँ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0, U कितने से थ्रो किया हम लोगों ने? They have given you thrown, यहाँ पे दिया है 29.4। अभी हम साइन कन्वेंशन अपना चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। नाउ वी कैन टेक द साइन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। वैसे ऑफ कोर्स आंसर चेंज नहीं होता डायरेक्शन को, जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लो, आंसर विल बी ऑलवेज राइट। तो ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन यू टेल मी क्या लेना है। डू वी फॉलो दिस साइन तो कन्वेंशन? माइनस ही ले लेते ना, अभी वो फॉलो कर ही ठीक रहे है, तो माइनस ही ठीक कर है, तो लेते। ठीक हो। तो ये तो स्क्वायर वाला टर्म, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये तुम्हारा 29.4 स्क्वायर इंटू 29.4 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड इज पॉजिटिव 9.8, एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या आएगा, हाईएस्ट पॉइंट निकलना है ना। उन्होंने क्या पूछा, हाउ व्हाट इज द हाइट जनरली व्हाट इज कॉल्ड ग्राउंड से, देखते हैं वो माइनस आनी चाहिए हम h, ठीक है। तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रही है। माइनस 44.1 मीटर। ये आ गई s, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, s आ गया। यहाँ पे भी मैं s लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग s हियर। तो डिस्प्लेसमेंट, बट हाइट हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म नहीं लिखती, देयरफॉर हाइट इज 44.4 मीटर। माइनस क्यों आया? बिकॉज हमने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली है, एज पर द थर्ड केस जो था ना, उसी को साइन कन्वेंशन हमने फॉलो कर लिया है, इसलिए माइनस आया है।
but our height will be in any case it will be 44.1. And second part क्या है? Return, how long does it take to come to the player's hand? कितने टाइम में वापस आ जाएगी वो? How much time it will take to come back to its initial point? तो इसमें क्या कर Sir. सकते हैं? हाँ बोलो बोलो कैसे करेंगे? सर पहले T1 निकालेंगे। T1 V किसका होगा? सर जब बॉल ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे भी Yes. आ रही है ना, Yes. तो पहले T1 निकालेंगे। V इज इक्वल टू U प्लस 80 लेके V 0 Okay. दिया है, U माइनस क्या जीरो दिया है? 29.4 एक मिनट, क्या जीरो दिया है? V। V0 कहाँ दिया है? सर नहीं मतलब सर ऊपर जा रही है तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो वो वेलोसिटी Okay. 0 हो जाएगी ना। ओके, फिर उससे T मिलेगा। हाँ तो ये T1 मिल गया, और फिर Okay. T2 निकालने के लिए फाइनल मतलब फिर जो V रहेगा वो 29 मतलब वो 29.4 हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट Okay, उसको error is U done. लिख। Okay, हाँ तो फिर दो बार नहीं करो, ओनली वन साइड का टाइम निकाल लो। सर वो टी तो सेम ही रहेगा ऊपर और हाँ, नीचे जाने में। जितने टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम नीचे आने में लगेगा। एक साइड का निकाल लो। 0 इज इक्वल टू 29.4 और ये माइनस लेना है तो G प्लस लेना है 9.8 इंटू टी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, T इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। ओहो, एक मिनट, ये सब डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ। तो T इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल टाइम विल बी 3 + 3 है ना। टोटल टाइम वापस आने में 3 लगेंगे, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट था। क्लियर? तो दिस इज सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला है 2u/g। सॉरी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से S0 ले लेंगे, वापस आ गए, उससे भी आ जाएगा, उससे डायरेक्ट 6 आ जाएगा। देखो, इफ यू यूज हाँ 2u/g अगर हम करेंगे तो हाफ एटी स्क्वायर यूज करो, वापस जब अपने पास आ जाए, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है तो इट विल बी 0। यू कैन डू इट एट होम। 0 हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में माइनस लेने 29.4 T और डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस है, तो ये 9.8 का हाफ हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू सॉल्व इट, दो वैल्यू आएंगी, एक आंसर 6 होगा, एक नेगेटिव कुछ होगा, तो ये आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 बिकॉज बॉल गोज अप देन कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इससे भी आएगा। तो देयर आर ऑलवेज मोर देन वन मेथड, you can just adopt any method but it should be properly signed, sign convention proper लेना है। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुई है, बोलो। ये माइनस लिया तो ये प्लस होगा कि नहीं? एक्सेलरेशन नीचे है ना, नीचे वाली प्लस, इसमें से 1 - 1 प्लस। तुम लोग क्या करते हो, सब प्लस लेके चला कर देते हो, साइन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज सेकंड मेथड आल्सो। नाउ ये क्वेश्चन था, देखो, दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू, इसको नोट करना था क्या? ये पार्ट देख लो, जस्ट यू कैन टेक। देखो, नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग, वो तो खैर एनसीईआरटी बुक का है, बट उससे अगला पार्ट जो मैंने दिया था दैट इज इंटरेस्टिंग। ये दिया था कि नहीं दिया था मैंने, बताओ। फ्री फॉल, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द, बोलो। सर दिया था लेकिन जमा नहीं। जमा नहीं, चलो देखते हैं इसको। लेट अस सी वन बाय वन। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, बॉडी गोज अप कम्स डाउन, हाईएस्ट पॉइंट
एवरीवेयर माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं अभी, तो एवरीवेयर -9.8, t इज इक्वल टू 0 पर भी, आफ्टर सम टाइम आल्सो, तो ये 0 है, सपोज यहाँ पे हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसे लिया, तो एट एवरी मोमेंट इट इज कांस्टेंट और नेगेटिव -9.8. तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. समबडी में से यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ही विल से डाउनवर्ड डायरेक्शन आई एम टेकिंग पॉजिटिव, जैसे इसमें था, है ना, तो ही में ड्रॉ हियर आल्सो, बोथ आर राइट. यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये टू मेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन आई एम टेकिंग पॉजिटिव. और यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे somebody draws, इसको रॉन्ग नहीं ले सकते, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने ऐसे ही दिया है, बट यू here also you can get full marks, but you have to write I am taking downward direction positive. Both the answer, both will be correct. Now velocity time graph, यहाँ से हमने इसको छोड़ा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, t is equal to 0, यहाँ पे लिए x is equal to 0, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लिए ना, तो ऐसे बढ़ेगी एक कांस्टेंट रेट से. ओरिजिन से आगे ग्राफ लाइक दिस, स्लोप चेंज नहीं होगा. स्लोप होता है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो स्लोप चेंज नहीं होता. स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट. बट somebody में से आई एम टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस, उसका ग्राफ फिर ऐसे आएगा. Teachers cannot rule out this graph also. If you draw it like this, you are supposed to get the full marks, but you have to mention I am taking the downward direction positive. But NCERT book में short example है, they are given like this. Now, अच्छा speed time graph होता तो, अगर मैं यहाँ पे speed time graph कर दूं तो, तब this will be wrong. Speed is always positive. तो ऐसे ही ड्रा करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था. यहाँ पे हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 ले रहे हैं, और नीचे का डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा. तो ग्राफ में इसमें दो ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे कब आएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है बट वेलोसिटी बढ़ रही है. दिस इज रॉन्ग. नाउ देयर आर टू सिचुएशंस, विल इट बी लाइक दिस और विल इट बी लाइक दिस. ऐसे कर्व्ड आएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीजेस है. So it will be like this. इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इज मोर, इतना डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही. तो इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट कैन बी अदर वे अराउंड, लाइक दिस, लाइक दिस. इनिशियली स्पीड कम होगी उसकी, है ना, तो सेम टाइम इंटरवल में पहले कम, इस टाइम इंटरवल में इतना ही डिस्प्लेसमेंट है, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में मोर डिस्प्लेसमेंट, फर्दर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में फर्दर मोर डिस्प्लेसमेंट. तो स्पीड इंक्रीज हो रही है. ऐसे स्लोप से भी बात कर सकते हैं, इनिशियली स्लोप 0 है, फिर थोड़ा स्लोप ऐसा हो रहा है. जैसे जैसे वर्टिकल लाइन होती है स्लोप, इट इज वर्टिकल लाइन होती है तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, ऐसा बोलते हैं. या फिर अच्छा ये ऐसा क्यों है, पैराबोलिक से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं. ऐसे देखो तो हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे x लिख दो, पैराबोलिक है, इसका पैराबोलिक ऐसा बनेगा, दिस इज पैराबोलिक. जनरली वी ड्रॉ हाफ ऑफ द पैराबोला इन दिस, है ना, सिंगल पावर है, सिंगल पावर की तरफ बेंड होता है ऐसे. तो देयर आर वेरियस मेथड, इवन इफ यू डोंट नो पैराबोला एंड ऑल, फिर भी तुम लॉजिक लगा सकते हैं. इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या, यस इट इज इंक्रीजिंग, फर्दर इंक्रीजिंग. इतना हो गया, पहले इतना था. तो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट गेट द जजमेंट. तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, एंड उन्होंने वैल्यूज भी लिखी हुई यहाँ पर, कितने कितने कैलकुलेशन किए देन बनाया. तो डजंट मैटर, कैलकुलेशन जनरली हम लोगों को नहीं करना पड़ता है. नहीं पढ़ ली इसने, हाँ पढ़ लिया. क्या हो रहा है क्लास में, हु इज दैट, वंशिका, पे अटेंशन इन द क्लास, क्लास में ध्यान दो. ठीक है, देखो, रिपीट ऑल द पार्ट्स फॉर द ऑब्जेक्ट थ्रोन अप. एक मिनट, जस्ट लेट मी, ओके चलो, इट इज नॉट गेटिंग अप.
देखो all the parts repeat करने थे. Body thrown up and till it comes back to ground. ऊपर गई फिर घूम के ऐसे आ गई. तो acceleration time graph I told you it is independent of the motion of the object. ऊपर फेंको, एंगल पे फेंको, इवन एंगल पे भी होता है ना. इफ यू थ्रो द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले ऐसे, तो उसमें भी ये ग्राफ आने वाला है. तो इट इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम -9.8 डाउनवर्ड. तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कोई फर्क नहीं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका जो है, किसी का आया क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? सर I am not- डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो वो अच्छा सेकंड सीक्वेंस बनेगा। में क्या था? एक मिनट, सीक्वेंस में क्या था? वेलोसिटी टाइम, हाँ लास्ट में. हम बोलो. सर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो फिर वो ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा. हाँ तो वही ड्रा करना है ना वेलोसिटी टाइम. ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में, नीट में, इसीलिए जस्ट आई एम नॉट ड्रॉन, आई एम आस्किंग यू. इसमें भी वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम. इफ यू ड्रा द प्रॉपर वेलोसिटी टाइम देन आई विल आस्क यू टू ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ आल्सो. इसी का दोनों मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. तो ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखो ये मैं बता देता हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आई एम गिविंग यू टुडे आल्सो टाइम टू ड्रा बोथ. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में कैसे हो रहा है? धीरे धीरे स्पीड कम हो रही, फिर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही, फिर बढ़ेगी. तो इसका ऐसा जाएगा कर्व लाइन, ऐसे जाएगा. स्पीड कम हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई, फिर टर्न होके फिर ऐसे आते. पैराबोला ही है ये, दिस इज आल्सो पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, तो इसमें मैं आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज लाइक दिस. इसमें तुम्हें डाउट आ सकता था कि सर ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, या फिर ऐसा क्यों नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होगा बिकॉज ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, एंगल चेंज नहीं होता ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. स्पीड तो डिक्रीज हो रही पहले, फिर बढ़ रही है, तो ऐसा तो आएगा नहीं, है ना. ऐसा देखो, अभी देखो इनिशियली इट इज कवरिंग मोर. सपोज टाइम इंटरवल है, होल्ड ऑन, टाइम इंटरवल है इतना. इनिशियली इट इज कवरिंग दिस मच डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. हाईएस्ट पॉइंट पे ये इसका स्लोप जीरो हो गया. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो जीरो हो गई. यहाँ पर पहुंचेगी ना, जीरो हो जाएगी, फिर टर्न करेगी, फिर उसका स्पीड अप होती. तो ऐसा पैराबोलिक होता है. इसकी जो इक्वेशन होती है ना, एस इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये भी सिंगल पावर है और ये डबल पावर है. तो ये ऐसा इन्वर्टेड पैराबोला होता है. ये पैराबोला इक्वेशन मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तुम्हें. इसका वर्टेक्स यहाँ पर होता है. इस तरह की जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है ना, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता, दूसरी जगह होते हैं. ठीक है, तो दैट इज मैथमेटिकल पार्ट, बट तुम कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हो. विल इट बी लाइक दिस और विल इट बी लाइक दिस? ऐसा तो नहीं होगा. ऐसे इसमें क्या दिखा रहा है? स्पीड बढ़ती चली जा रही, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे डबल स्पीड हो गई, एक इस ग्राफ की, एक इस ग्राफ की. कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं होते शार्पली. यहाँ पे दो स्लोप नहीं हो सकते. मैथ्स में ये सब पढ़ाए जाएंगे पॉइंट. ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इस पार्ट का. बॉडी थ्रोन अप, गोज अप, यहाँ से टर्न होती है, फिर नीचे आती है. तो दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो ये कोशिश करो. होमवर्क है. हाँ ये स्टिल होमवर्क है. वेलोसिटी टाइम इसी केस का ही, वेलोसिटी एंड स्पीड टाइम ग्राफ. फिर से ट्राई करो और भेजो मुझे. इतना पार्ट होमवर्क है बस, ये वाला और ये वाला. केस क्या है? रिपीट इन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप until it comes back to the ground. You have to draw velocity time graph and speed time graph. ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का हो गया था कि होने का है? ये एक्सप्लेन कर दिया था मैंने. नहीं सर, होने का है. ओके चलो देखते हैं. देखो ये एक रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सॉलिड एग्जांपल है. स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड to the moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for the road safety and depends on the initial velocity v naught.
and the braking capacity or deceleration, that is minus a, that is caused by the braking, derive an expression for the stopping distance of vehicle in terms of initial velocity and acceleration. तो एक कौन सी इक्वेशन यूज करें इसके लिए हम लोग, इन दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस? v square minus u square is equal to 2a. हाँ, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. स्टॉपिंग डिस्टेंस में v जीरो हो जाएगा. इसको हम u ले रहे हैं, इन्होंने u नॉट लिया, v नॉट लिया, बट वी आर टेकिंग u. और ब्रेक से तो इसलिए माइनस एक्सेलेरेशन और स्टॉपिंग डिस्टेंस इज d. तो ये रिलेशन आ गया अपना. ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाई 2a. इन्होंने आंसर में माइनस दिया, माइनस एक्चुअली में नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर, तो ये आंसर रहेगा. नाउ इसमें कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है, देखो इसका जनरल फार्मूला ये बन गया है. 2a तो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा. सपोज इनिशियली यू आर ड्राइविंग एट स्पीड u1, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज d1. नाउ यू आर ड्राइविंग एट u2, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज d2. फॉर एग्जांपल, तुमने इनिशियली यू आर ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद तुमने स्पीड अगर डबल कर दी, 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 एंड 42 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स हो जाएगा. सपोज इनिशियली से इट इज टेकिंग 10 मीटर टू स्टॉप और 5 मीटर टू स्टॉप, देन इट विल टेक 20 मीटर टू स्टॉप, है ना. तो ये रोड सेफ्टी. अगर तुमने 3 टाइम्स स्पीड 3 टाइम्स रखी, तो 9 स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 9 टाइम्स. तो दैट्स हाउ इट गोस. तो यू इसीलिए जो है हाई स्पीड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सडनली इफ समबडी कम्स इन फ्रंट, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या कोई गाड़ी आ गई सामने, तो पूरे ब्रेक लगाने के बाद भी जाके स्मैश कर देती है वो गाड़ी, है ना. तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन भी की है. देखो, दे हैव डन सम रियल लाइफ कैलकुलेशन. ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज 10 मीटर व्हेन द वेलोसिटी वाज 11, देन व्हेन वेलोसिटी वाज मेड 15, स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो गई. जब 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 स्पीड 20 कर ली, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मोर देन 3 टाइम्स हो गई. जब डिस्टेंस 2.5 टाइम्स की, स्टॉपिंग डिस्टेंस 5 टाइम्स हो गई. तो दिस इज द रियल लाइफ उन्होंने कैलकुलेशन है व्हीकल्स में. तो स्क्वायर के स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस. दिस इज द सर इंफॉर्मेशन. सर मेरे को d2 अपॉन d1 वाला नहीं समझा. देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि suppose car is moving at the speed of say 40 kilometer per hour, it applies the brake, full brake, stopping distance is say 5 meter. Now find out the stopping distance if it was moving at double speed. तो u2 is 2 times of u1, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, है ना. तो इनिशियल d1 was 5, तो d2 will be 4 into 5, 20 meters. ऐसे कैलकुलेट करेंगे. समझा? हाँ सर समझ गया. है ना. तो वो मैं आई वांट टू से कि अगर हम ये रिलेशन होता है, अगर तुम्हें इनिशियल स्पीड पता है और इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो फाइनल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते, d2 निकाल सकते. क्लियर? यू नोट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, नहीं तो भूल जाओगे फिर. या जैसे मैंने बताया ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लो. इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन इट इज मूविंग विद u1, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज d1. व्हेन इट इज मूविंग विद u2, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज d2. रिलेशन विल बी लाइक दिस. अगर उसने हाफ कर दी स्पीड, तो 1/4 पे रुक जाएगी. सपोज इट वाज मूविंग विद से 40 किलोमीटर, देन इट इज ड्राइविंग एट 10 किलोमीटर, नहीं 20 किलोमीटर, तब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 डिस्टेंस पे रुक जाएगी. It can go both way. ठीक है. सर यस.
भाई u1 और u2 कौन से वेलोसिटीज हैं? ओके लिखो, नोट में लिखो, राइट डाउन द नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखो, लिखो लिखो, if car is moving, note में लिखो, if car is moving with the initial speed u1 and full brakes are applied, then stopping distance is d1, and when it is moving with the speed u2, and again full brakes are applied, then stopping distance is d2. Find d2 by d1, रेशो निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशो निकालना है। तो ये हम यूज कर सकते हैं यहां से, सिंस d is equal to u square by 2a, therefore d1 will be u1 square by 2a. एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग कंडीशन तो चेंज होती नहीं कार की, पहले भी फुल ब्रेक लगाए, बाद में भी फुल ब्रेक लगाए, एंड d2 विल बी u2 स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो डिवाइडिंग 2 by 1, तो d2 by d1 will be u2 square by 2a, u1 square by 2a, 2a will go, it is u2 by u1 का होल स्क्वायर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, that will be the square of their moving velocities का रेशियो। ठीक है, गॉट इट हाँ नाउ? सर, यस सर। तो इसमें भी अभी वैल्यूज दी होती हैं। क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, इनिशियल इट वाज मूविंग विद सडन स्पीड, देन उसकी स्पीड इतनी हो गई, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग, इनिशियली स्टॉपिंग डिस्टेंस इज दिस मच। तो यू कैन यूज इट लाइक दिस, अदरवाइज यू कैन गो बैक टू द बेसिक्स, मेक टू इक्वेशन। अगर ये भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट डू इट विद दिस, ये इक्वेशन बनाओ और करो। सो मेनी फार्मूलाज, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट we have to, if we want to increase the speed, so we have to remember this. Particularly, I am telling you competitive examination के लिए, otherwise no problem, you can just make two question and solve it. ठीक है? Now we are going to see the reaction time. One short example is given. Reaction time के बारे में discussion किया गया है। जैसे हम लोग while we are driving the vehicle, suddenly somebody comes in front, so our eyes will observe, then it will send the signal to the brain will send the signal to the hands and legs, अगर हाथ से ब्रेक लगाना है या पैरों से लगाना है, तो it takes some time, some fraction of second to react, that is called reaction time. At young age it can be less, but at over the old age then it can be more, है ना? इसीलिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस में फिर वो एज, सर्टन एज के मेडिकल टेस्ट भी होते हैं ना, तो सर्टन एज के बाद जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, बिकॉज रिफ्लेक्सेस आर स्लो डाउन। तो व्हेन सिचुएशन डिमांड्स आवर immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. ऑब्जर्व करता है, सोचता है, फिर एक्ट करता है, दैट इज रिएक्शन टाइम, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is reaction time. Reaction time demands and depends on complexity of the situation and on individual also.
You can measure your reaction time by simple experiment. Take ruler, तुम अपना reaction time निकाल सकते हो. Take ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and 4 fingers. यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है तुम्हारे फ्रेंड ने. After you catch, जैसे वो रिलीज करता है, you see it, उसको देखो जब रिलीज किया, then you catch it. After you catch it, find the distance traveled by the ruler. In particular case, D was found to be 21 centimeter. Find the reaction time. ये एक्सपेरिमेंट किया, इसने जैसे छोड़ा, this person saw and immediately उसने कैच किया, but by the time it came down 21 centimeter. तो रिएक्शन टाइम निकालते हैं. D is equal to माइनस हाफ GT स्क्वायर. G की वैल्यू यहाँ पे, या पहले माइनस नहीं पुट करना चाहिए, पहले प्लस बाद में माइनस पुट करना चाहिए. और D भी माइनस आएगा, माइनस आएगा मतलब नीचे आएगा, तो नीचे पुट करेंगे. यहाँ पे -21 पुट करेंगे. ओके, डिड आई सॉल्व इट? नहीं सॉल्व किया, ठीक है. या -21 पुट करेंगे, या -9.8, माइनस माइनस विल गो. तो इसको सॉल्व करेंगे. T will be reaction time will be 2D upon G. D की वैल्यू पुट कर दी, Z 9.8, सॉल्व किया तो 0.2 सेकेंड. तो 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो यू कैन टेक. तो इसमें क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल इज देयर तो बोला जाए, सपोज ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है इसका, जस्ट लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सपोज बॉय कम्स इन फ्रंट, reaction time is 0.2. By that time car will be traveling, suppose car is going with say 40 km/h, है ना. उसने देखा कि यहाँ पर somebody comes in front, तो he applies the full brakes, है ना. Find out the stopping distance. तो stopping distance अभी हमने देखा था निकालना, but reaction time में कितनी travel हो जाएगी? 0.2. Suppose car was driving say 36 km/h, तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर/सेकेंड. और 0.2 टाइम लगेगा उसको ब्रेक 0.2 लगेगा रिएक्ट करने में, उसके बाद ब्रेक लगेगा. बाय दैट टाइम हाउ मच इट विल कवर द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. x1 विल बी 10 into 0.2, तो 2 मीटर. मतलब 2 मीटर के बाद जो है ब्रेक लगेगा. बाय दैट टाइम इट विल कवर 2 मीटर. इफ इट इज मूविंग फास्ट इट विल कवर मोर टाइम. सपोज इट वाज मूविंग विद 72, तो उस समय कितना आएगा? 20. उस समय 4 मीटर के बाद, 4 मीटर के बाद वो ब्रेक अपना प्रेस कर पाएगा. इसलिए क्या होता है, जब गैप बहुत कम होता है तभी एक्सीडेंट हो जाते हैं. somebody is moving fast, सडनली किसी ने, आगे वाले ने रोक दिया, तो क्या होता है, गैप कम है, इसीलिए बोलते हैं ना मेंटेन सम सेफ्टी डिस्टेंस. तो 4 मीटर के बाद ब्रेक लगेगा. बाय दैट टाइम इट विल स्मैश टू द फ्रंट व्हीकल. 4 मीटर इज क्वाइट, इट इज नॉट ए स्मॉल डिस्टेंस.